Good morning to you all. Good morning, sir. So, sorry for being late because actually I have opened Zoom, but I have opened another class. So I thought that I have opened your class, but I have opened another class. So I have मैंने देखा कि अरे कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, so फिर देखा that मैंने दूसरा ही क्लास ओपन कर रखा है. Okay. So we will do some questions of combination circuits. So am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So just wait for a few seconds. The PDF is opening. I think last class में मैंने एक प्रॉब्लम दिया था आप लोगों को मार्क्स का. ओह सॉरी, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रजिस्टर. लास्ट का हम क्लास में हमने रजिस्टर और काउंटर के प्रॉब्लम देखे थे. Yes, sir. So in that particular in those particular questions we have discussed the counter questions which was related to counter. So have we finished that? Have you finished that question? Okay. So firstly, I'm giving you one question. Please tell me that what is the solution for the question. Okay. Are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Okay. Where's that? Okay, so the question is, we have an XOR gate. Okay, we have an XOR gate which is connected with
this B bar and A. And here we will have, this is not XOR, this is an XNOR gate. Okay. And we have another XNOR gate with the inputs as A bar and B, and both of these is also connected with another gate. So you have to tell that what is this output. Okay, so you have to tell me that what is this output. Yes, whoever will get the answer, please tell me the answer. So how we can proceed? What is the output here? Sir, What is sir, A B B बार के ऊपर बार मतलब B okay? So AB you are telling the final output. नहीं सर वो पहला वाला का आउटपुट बता रहा है X आप बता रहे हो. Okay, let यस सर here X and Y values. Okay, so what is the value of X? AB AB, प्लस yes, A बार B बार A bar B. Okay, and here Y, सर A बार B बार A bar B bar, प्लस AB plus AB. Okay, so anybody else who will tell that whether it is right or wrong? So Bharat, you has said these outputs. यस सर Okay. Anybody else who will tell me whether this is right or wrong? सर ए में भी बार होगा ना सर x इज इक्वल टू सर ए बार Prashant, you B tell plus- your answer. Prashant, you tell your answer. सर x में हम बोल रहे हैं सर ए बार इंटू बी प्लस ए बार बी बार A bar, B bar. Okay, so I am. नो सर ए में बार नहीं होगा सर ए बार नहीं सर ए bar नहीं हाँ होगा. ठीक. बी बार प्लस ए बी बार यस So can anybody else here who will tell me the answer? सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा सर अच्छा, आप मुझे पहले तो x और y का वैल्यूज बताएं मुझे. So two of you have told me the answer. Anybody else? What is the value of x? Anybody else? Nobody. सर Okay. ए बी प्लस ए बार बी उत्तम. AB plus A bar B. Okay. Uttam, you are telling the value of x, है ना? Okay, let us see. So which type of gate is this? Gate number 1, gate number 2, gate number 3. I am writing the output of gate number 1. Okay. So what will be the output of gate number 1? I am writing it as x is equal to, which gate is this? Which gate is this one? x नॉट Sorry, था sir. x और It is सॉरी x. सर थोड़ा गलती हो गया It is XOR or XNOR? यस सर गलती हो XOR गई सर XNOR. This is XNOR. Okay. So what is the expression for XNOR?
ए ओ सॉरी सर, हाँ अगर हमारे पास ए और बी दो इनपुट्स हैं तो ए एक्स नॉर बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट विथ एन सर्कल यस सर, इज इक्वल टू यस सर, ए बी बी प्लस प्लस ए बी बार बी बार, है ना, ये होता है एक्स नॉर। ओके, तो हाँ यहाँ सर, देखें बी के जगह में क्या लिखा हुआ है, बी बार लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर यस सर, क्या पुट करेंगे, ए और बी के जगह में क्या हो जाएगा, बी बार, बी बार, ए बार, और बी बार के जगह में बी क्या हो बार, जाएगा, बी बार, बी डबल बार, बी है ना। सर, डायरेक्ट बी ही लिख सकते हैं सर डायरेक्ट। Yes, yes. So A B bar plus A bar B. So now what you can see here? What is this? A B bar plus A bar B. यस सर, This is nothing but A X or B, isn't it? यस सर, यस सर, Okay. So now let us take the value. So whatever the values all of you have told. So okay, the second answer given by Prashant is right. A bar B plus AB bar. So this can be written as AX or B. Okay, so this is wrong. Second one, for gate number 2. So for gate number 1, we have got the value of X as AX or B. Okay, now output of gate number 2. Y is equal. वेट सर, So I think this is wrong. What Prashant has told. Sir, A bar. ए बी प्लस ए बार बी बार सर, ये भी वही तो आएगा सर। ओके, तो यहाँ पर देख लें क्या, दिस इज ए के जगह में ए बार है और बी जो है वो इनपुट बी है। ओके, सो यस सर, यहाँ पर ए बी प्लस ए और बार गेट है A bar B B bar. plus A B bar. ओके, तो एक्स नॉर का हम जानते हैं, ए एक्स नॉर बी इज इक्वल टू ए बी ए बार बी होता है। तो यहाँ पर सेकंड वाले के लिए जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सेकंड वाले के लिए जो आउटपुट आएगा, ए के जगह में ए बार है तो हम क्या करेंगे, ए बार बी प्लस ए बार का बार होगा और बी होगा होगा तो सेकंड वाला भी, हाँ सर, ऐसा आएगा, और Yes, sir. डबल बार को हम ए लिख सकते हैं। तो जो आउटपुट Yes, sir. क्या आ रहा है, ए बार बी प्लस ए बी। अच्छा, यहाँ पर कुछ छूट गया, B का बार ना है। यहाँ बी का बार भी होगा। ओके, ऐसा आ रहा है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ए ए एक्स और बी, है ना। इसका मतलब है, सर, यस सर सिंबल में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर, ये एक्स और का है तो एक्स और का सर ए बार बी और ए बी बार ना होगा सर एक्सप्रेशन। हाँ, तो मैंने क्या लिखा है, सर आप ए बी प्लस ए बार बी बार लिखें। ये मैंने जो सिंबल दिया है वो क्या लिखा है, सर्कल के अंदर डॉट है, यस सर, सर्कल के अंदर डॉट मतलब ये एक्स नॉर है, ठीक है। यस सर, और एक्स और का क्या होता है, एक्स प्लस होता है सर। यस, अगर एक्स और लिखें तो एक्स और का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ए एक्स और बी, मतलब सर्किल के अंदर प्लस का साइन होता है, और एक्स नॉर में ए एक्स नॉर बी ऐसा लिखते हैं। इसका एक्सप्रेशन होता है ए बी बार प्लस ए बार बी, और इसका एक्सप्रेशन होता है ए बी प्लस ए बार बी बार। ओके, सर एक्स और का अगर ऊपर बार दे देंगे तो वो भी तो सेम एक्सप्रेशन देगा ना। यस यस, तो वही, यस अगर हमें भी एक्स नॉर को लिखना हो तो एक्स नॉर को हम लिख सकते हैं ए एक्स और बी का बार। ओके, क्योंकि एक्स और का ही नॉट करते हैं तो हमें एक्स नॉर मिलता है। ओके, सो अभी जो हमें आउटपुट मिला है वो क्या मिला है, हमें चाहिए टोटल आउटपुट। सो व्हाट विल बी द आउटपुट नाउ, द ओवरऑल आउटपुट, फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, सर A X और B का बार आ जाएगा।
तो नहीं नहीं, यहाँ पर हमें दिख क्या रहा है, ये कौन सा गेट है, फिर से एक्स नॉर गेट है ना, एक्स जी नॉर है सर। सर। एक्स नॉर गेट है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स नॉर किसका किसका, एक्स और वाई का, एक्स नॉर एक्स, यस सर। एक्स नॉर वाई, यही तो होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ए प्लस बी। एक्स और बी, इसका एक्स नॉर करेंगे किसके साथ, वाई के साथ, और वाई का भी वैल्यू क्या है, सेम। y का भी वैल्यू सेम ही है, दैट इज a x और b. Now tell me what will be the output. सर सेम आएगा ना आउटपुट, Same आएगा मतलब, 0 0। so what we know, let us see, for x or x nor, आपको ट्रूथ टेबल याद रहना चाहिए, ये कंडीशन है, आपको ट्रूथ टेबल याद रहना चाहिए। अगर हमारे पास a और b दो इनपुट्स हैं, तो you should have in mind the truth table of the gates. So we have 0 0 0 1 1 0 1 1. So for this case, what are the values of XOR? 0 सर। It is 0. Zero. It is 1 1 0। 1 One. 0। और XNOR में क्या होगा, जो हमें XOR में मिला उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। So here it should be यस सर। 1 0 0 1। 0 1। हमें ऐसा कुछ ट्रूथ टेबल मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन केस ऑफ एक्सनॉर, हमारे पास यहाँ पर जो गेट है वो एक्सनॉर गेट है। सो इन दिस केस व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, व्हेन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर सेम, व्हेन द यस सर, तो 0 आ रहा है। वैल्यू, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्सनॉर? 1। 1 सर। One. तो हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और इन दोनों का ही वैल्यू सेम है ना, एक्स भी वही है और वाई भी वही है। तो जब सेम डेटा का या सेम इनपुट का एक्सनॉर करते हैं, सो आउटपुट विल बी व्हाट, सेम 1 1. So 1 should be 1। यस okay. यस सर। Okay, so let me, so this is the question which is asked in GATE 1995 of 1 mark. This is a 1 mark question. सर थोड़ा सर नीचे स्क्रॉल कीजिए ना सर, स्क्रीनशॉट लेंगे। Just wait for a minute. Okay, so एक मिनट, स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूरा जो मैंने लिखा है वो एक पेज में आना चाहिए ना। यस Visible? हाँ सर, डन सर। Okay, so let us go for the PDF. Okay, are you able to see the PDF? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the first question, what is the question? Question is the minimal function that can detect a divisible by 3 8421 BCD code digit. Representation is D8, D4, D2, D1 is given by. Okay, so what we have to check here, we have to check divisible by 3. We have to check here divisible by 3 8421 BCD code digit. तो उसके लिए जो मिनिमल फंक्शन होगा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? So what is the approach? Can anybody tell me? What will be the approach? क्या इस साइज में टेक्स्ट विजिबल है? Yes sir। Okay, I have decreased the size because I have to write here. Now,
यहाँ पर हमें कहा क्या गया है, हमें कहा गया है कि हमें डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करना है और 8421 कोड डिजिट है, ठीक है। तो 8421 कोड होता क्या है, सभी को मालूम है? वेटेड कोड है सर। तो 8421 एक वेटेड कोड है। इस वेटेड कोड में जो वैल्यूज होता है, मान लें अगर कोई बाइनरी नंबर है लाइक रिप्रेजेंटेड एज 1011, so what will be the value? So this is the binary, so what will be the value in decimal? 9 सर। It is 8421. Okay, if it is 8421, so it is the value, is it 9? So here it is written, यस सर। here it is written as 8421 BCD code. 8421 BCD कोड। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? तो BCD कोड, अगर BCD की हम बात करते हैं तो BCD कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 9 तक सर। यस, BCD जो होता है वो 0 से लेकर 9 तक के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। सो 8421 BCD कोड कह रहे हैं। सो दिस इज द रॉन्ग एग्जांपल व्हाट आई हैव टेकन, बिकॉज क्यों ये एग्जांपल मैं क्यों कह रहा हूँ ये एग्जांपल गलत है? क्योंकि 8421 कोड ले रहे हैं एंड दिस 8421 कोड इज अ BCD कोड, देन इन दैट केस वी कैन टेक अप टू 9। ओके, तो इसलिए मैंने जो एग्जांपल यहाँ पर लिया है वो सही नहीं है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सो वी कैन टेक एग्जांपल एज 0 1 1 0। ओके, so if this is 8421, so what is the value in decimal? 6। Yes, obviously it is 6 in decimal. Okay, now हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें 8421 चेक करना है कि यहाँ पर ये इसका एक्सप्रेशन कौन सा है। तो हमें ट्रूथ टेबल चाहिए, एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें ट्रूथ टेबल चाहिए, ठीक है। तो 8421 कोड में अगर हम लिखें तो एक्सप्रेशन में हमें क्या होगा, क्या मिलेगा? D8, D4, D2 और D1, ये 4 डिजिट्स हैं और हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब हमें डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करना है, तो हमारे पास जो इनपुट्स होगा वो क्या क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। 0 0 1 1, देन 0 0 0 1 0 0, then 0 1 0 1, then 0 1 1 0, then 0 1 1 1, then 1 0 0 0, और उसके बाद एक और आएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसे ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या, इनपुट क्या आएगा? वो 1 0 0 1 आएगा, isn't it? और ये जो है वो किसी इसका डेसिमल क्या होगा, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 0 0 1। Am I audible? 4 सर। हाँ, So 9. ओके, ये 9 होगा, ठीक है, ये होगा 9। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर सबका अगर डेसिमल लिखें तो हमें क्या मिलेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने ऊपर 9 लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ कहा क्या जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट डिविजिबल बाय 3 चेक करना है। तो हम क्या जानते हैं कि 3 से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं? 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? ये होगा, ये 3 होगा, 6 तो 9 9 होगा। होगा 9। और 9 होगा, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा, क्या हम देख सकते हैं अब? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन पता करना है। एक्सप्रेशन पता करने के लिए अगर हम अभी सारे एक्सप्रेशन को लिखें तो सारे जो टोटल आउटपुट होगा, दैट आउटपुट विल कंसिस्ट ऑफ द 8421 ऑफ दिस 0 3 6 एंड 9। तो अगर हम सभी को लिखें तो ये पहला वाला जो है वो हमारे एक्सप्रेशन में आ रहा है। तो मतलब क्या है, अगर हम इसे लिखना चाहें वेरिएबल्स के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? D8 बार, D4 बार, D2 बार और D1 बार। ये क्लियर है क्या? यस सर। क्योंकि 0 हमारे पास आ रहा है,
ठीक है, नेक्स्ट वी कैन राइट इट एज क्या चाहिए D8 बार, इसका मतलब क्या होगा D8 बार D8 बार, D4 बार, D4 बार D2, D1, D2 D1 वेरी D2, गुड D1. नेक्स्ट So D8 bar, D8 बार D4, D4 D2, D2 D1 bar. D1 बार नाइस नेक्स्ट So D8, D4 bar, D2 bar, D1 bar, D1 only sir. ओके सो वी हैव दिस आउटपुट नाउ वी हैव टू हमें यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमें आउटपुट में मतलब जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जो भी एक्सप्रेशन है उसका ही सिंप्लीफाइड वर्जन है तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा तो वी कैन गो फॉर दी के मैप हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि अगर हमारे 4 वेरिएबल है. यस अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं तो मुझे ये बताइए कि 4 वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से कितने सारे मीन टर्म्स बनेंगे यस राइट सचिन सो चूंकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 वेरिएबल्स से टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो 16 कॉम्बिनेशंस के लिए हमें यहाँ पर 16 बॉक्सेस बनाने होंगे ओके नाउ हियर व्हाट यू कैन सी दैट D8 इज MSB एंड D1 इज LSB ओके तो यहाँ पर से अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये बॉक्स नंबर 0 होगा बॉक्स नंबर 1 यहाँ होगा क्योंकि D1 LSB है और LSB के साइड में हमेशा 1 होता है सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 अब हम के मैप को फिलअप करें तो कौन कौन से बॉक्स में 1 होगा 0 1 2 3 देन 6 देन 9 और उसके बाद तो 9 के बाद जो 10 11 12 13 14 15 है उनमें क्या करें क्योंकि हमारे ट्रूथ टेबल में वो तो आए नहीं तो उन सारे पोजीशंस पर हम क्या करें सत्यम व्हाट यू हैव टोल्ड तो 0 पुट करेंगे not 0 we will put don't care yes Suman very good Don't care. Yes sir. yes we will put a don't care क्योंकि यहाँ पर जो ट्रूथ टेबल है उन सारे पोजीशंस पर कुछ भी हो सकता है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है ओके दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन आवर चॉइस और आवर कॉम्बिनेशन क्या कॉम्बिनेशन हम बनाना चाहते हैं सो बेस्ड अपॉन दैट as the values from 10 to 15 is not available in the truth table so we will put D at all the places so after what after 9 that is 10 11 12 13 14 and 15 these all are don't care positions now we have to do the recombination or the combination biggest possible combination बनाना है तो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर एक ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है ठीक है यहाँ पर ये 1 है और क्या कॉम्बिनेशन दिख रहा है 1 और कहाँ है हमारे पास 1 यहाँ है सो दिस 1 विल गेट कंबाइंड विद दिस D नेक्स्ट एक बॉक्स नंबर 3 में बच रहा है एक 1 इसका क्या करें सर 3 और यहाँ 14 सर यस दिस इज 11 नॉट 14 सो 3 का 11 के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे अब एक 1 और बच रहा है दैट इज एट 0 0 का 10 सर 0 का 10 0 का 10 के साथ इस तरीके से 0 का 0 के साथ होगा सर 0 और किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि और कहीं हमें और कहीं एज पर भी नहीं दिख रहा है ना 8 पर दिख रहा है ना 2 पर दिख रहा है ना तो अगर कहीं एज पर दिखता है 8 या 2 पर कोई 1 होता तो हम उसके साथ कंबाइन कर सकते थे नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज सो टेल मी व्हाट शुड बी द वैल्यूज तो ये जो बिगेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इसके लिए हमें आउटपुट क्या मिलेगा यहां से वर्टिकली देखें
क्या कॉमन है? D2 D1 सर सर D8 यस और D4 बार। यस, D8 आएगा। और यहाँ में क्या कॉमन है? D2 सर D1 सर। इट इज D1 नॉट D2, तो इट इज D1, डू नॉट कंफ्यूज, ओके। क्योंकि जो वेट्स है, मतलब जो हमारे वेरिएबल्स का वेट्स है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ 0 0 और 0 1 लिखा है। तो यहाँ पर जो पहला वाला 0 है वो D2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा वाला दूसरा वाला 0 यानी दूसरा वाला जो बिट है वो D1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर वी विल हैव D8 एंड D1 नाउ फ्रॉम दिस ग्रुप। इस ग्रुप से क्या आएगा आउटपुट? तो D4 सर। और यहाँ से D4 कॉमन है, सो वी विल हैव D4. सर D ओके। तो और हमें कहाँ से देखना होगा? यहाँ से, क्योंकि 6 और 14 नंबर ये बॉक्स है, तो यहाँ से देखना होगा। तो क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ से? D2 D1 नॉट D2 D1 बार, बार सर। is it okay? D2 D1 बार, Yes, sir. okay. So let us take another one, that is this combination. इस combination के लिए क्या मिल रहा है? तो हमें वर्टिकली देखना होगा कहाँ से। अगर इस combination के लिए हम देख रहे हैं तो हमें वर्टिकली यहाँ देखना होगा और यहाँ देखना होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, ये है इस 1 के साथ कॉम्बिनेशन है ना। तो हम यहाँ और यहाँ देखेंगे क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ से। D4 बार सर। D4 बार D4 bar. ओके, नेक्स्ट यहाँ देखना होगा। D2 D1 sir. So here it is 1 1, so it is D2 D1. नेक्स्ट एक 1 यहाँ बच गया अलग, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यस 0 ये 0 है, तो यानी कि सभी का बार होगा। Yes sir. यस सर। सभी का बार होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही मिल D8 रहा है? बार D4 बार D2 बार D कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा सर है? ऑप्शन नंबर B। B sir. option B Okay, so this is only 1 mark question, but you have to do it. आपको ये करना होगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप, दूसरा तरीका है कि आप बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो कॉमन वॉमन लो, उसके बाद आएगा। तो चूंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है आप, यस अगर डायरेक्ट वैल्यू बैठा के करेंगे तो नहीं होगा सर? अगर D8 मतलब वैल्यू मान लेते हैं 0 1 में से कोई एक, इसका वैल्यूज आप बैठाइएगा, ये बताइए। हाँ, अगर आपने ट्रूथ टेबल बना लिया है तो आप वैल्यूज पुट करके देखें कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पे इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमें चेक क्या करना है? एक तो तरीका है, ठीक है, हम यहाँ कर सकते हैं। आप चेक करके देखिए कि 3 से डिविजिबल के लिए कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है। तो नंबर मान लेते हैं 6 ले लेते हैं कि 6 डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 के लिए आप पुट करके देखो वैल्यूज, किसका किसका वैल्यूज, D8 D4 D2 और D1 का ये वैल्यूज पुट करके देखो 6 के लिए कौन सा वैलिडिटी हो रहा है, मतलब किसके केस में 1 आ रहा है। 0 1 1 0 पुट करो वैल्यूज का, D4 D8 D4 D2 और D1 का, और देखो कि 1 वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हो आप दूसरी तरफ से भी जा सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपको इसके अलावा वहां से चेक करने में और ज्यादा ही समय लग जाए, ठीक है। तो गेट में एक्चुअली क्या है कि समय होता है आपके पास, बट एक्चुअली आपको ये प्रैक्टिस नहीं है और मैंने समझाने में इतना समय लगा है, इसलिए इतना टाइम आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय लगा है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में होगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, विद इन 2 मिनट्स यू कैन गेट द आंसर। ओके, सर वो कैसे सर 0 1 1 0 to the base 8 4 2 1, क्या बोल रहे हो? वो ब्रैकेट में लिखे हैं ना 0 1 1 0 और बेस में लिखे हुआ 8 4 2 1। अच्छा, ये हाँ सर।
हाँ तो क्या बोल रहे हो? उसको कैसे लिखे सर, समझ में नहीं आया। चाहिए 8421 कोड तो पता होना चाहिए ना पहले। 8421 कोड है क्या? 8421 कोड एक नंबर सिस्टम है, एक कोडिंग सिस्टम है, जिसमें कि जो बिट्स हैं लाइक B0, B1, B2 और B3, तो ये 8421 जो है इन सारे बिट्स का वेट है। मतलब जिस जिस पोजीशन पर 1 रहेगा उनके वेट्स को हम जोड़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा, है ना। तो इस 0 का वेट कितना है? 8। इस 1 का वेट कितना है? 4। इस 2 का वेट है 4 और इस 0 का वेट है 1। तो अब किसको किसको जो, सॉरी ये 2 है, तो ये कौन जिस जिस बिट पोजीशन पे 1 होगा उनके वेट्स को हम जोड़ेंगे तो जो वैल्यू होगा दैट विल बी द वैल्यू इन डेसिमल। इज इट क्लियर? सर Yes, sir. आप बोले थे कि 0110 का अगर हम इस वैल्यू पे पुट करेंगे इक्वल टू 1 आएगा सर। तो सर तो अगर हम फर्स्ट वाले भी ऑप्शन में जाके हम पुट करेंगे तो फिर भी तो हमारा 1 है, तो वो भी तो ऐसे सही हो जाएगा ना सर। उत्तम, मैंने इसीलिए कहा ना कि अगर आप 1 पुट कर रहे हैं तो हो सकता है किसी और में भी उस वैल्यू पे आउटपुट पे 1 आए। कोई जरूरी नहीं है कि इसी में सिर्फ 1 आएगा। मैंने कहा वन ऑफ दी ऑप्शंस विल बी दैट। आप ही लोगों में से कुछ किसी ने कहा कि क्या हम वैल्यूज रख के चेक कर सकते हैं? हाँ, वैल्यूज रख के चेक कर सकते हैं, बट दैट शुड नॉट बी वैलिड फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, जो प्रोसेस है वो जो एक राइट प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस व्हाट आई हैव टोल्ड यू। अब इसके अलावा अगर आप ऑप्शंस के थ्रू आंसर के पास जाना चाहते हो तो आपके पास आप अपने हिसाब से या आप अपने IQ के हिसाब से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, बट दैट विल नॉट 100% assure you that it will give you the right answer. Okay. ओके सर। Okay. So let us go for the next question. So I think this question we have done already. Question number 4.2. फोर पॉइंट टू हमने किया हुआ है पहले, इसलिए मैं 4.2 नहीं कर रहा हूं अभी। 4.3 हमने कर लिया। 4.4, 4.4 में बताएंगे। कोई बता सकते हैं? टेक्स्ट आप लोगों को दिख रहा है? क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. Okay, so you have to 2-bit binary multiplier can be implemented using, so 2-bit binary multiplier actually हमने उसका सर्किट देखा नहीं है अभी। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को भी ओमिट कर रहे हैं। सॉरी। ओके, इस क्वेश्चन को भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इसका आंसर आप अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हो। दैट आंसर विल बी 2 इनपुट x